بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دروازے کے باہر خورشید علی شاہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ٹہل رہے تھے۔ پریشانی کے تمام تاثرات ان کے چہرے سے عیاں تھے۔ نظریں دروازے کے پٹ پر لگی تھیں کہ کب دروازہ کھلے، اور دائی زہرا انہیں کوئی خوشخبری دے۔ خورشید علی، حوصلہ رکھ۔ ایک دم بڑے بھائی رشید علی شاہ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا، جو کہ دوسرے کمرے میں عبادت میں مشغول تھے۔ پریشان وہ بھی تھے، لیکن وہ جانتے تھے اگر انہوں نے اپنی پریشانی کا مظاہرہ کیا تو چھوٹا بھائی اور ہمت ہار دے گا، اسی لیے وہ چھوٹے بھائی کو حوصلے کی تلقین کر رہے تھے۔ بھائی جی، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مگر اس مرتبہ بھی اگر وہی کچھ ہوا نا تو بلقیس مر جائے گی۔ وہ بڑے بھائی کے سینے سے لگے اپنا غم ہلکا کر رہے تھے۔ خورشید علی، رب کی ذات پر بھروسہ رکھ، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سونا رب بہت غفور و رحیم ہے، اس کی طرف سے مایوس نہیں ہوتے۔ رشید علی نے خورشید علی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آرام سے پلنگ پر بٹھایا اور خود تسبیح پڑھنے میں محو ہو گئے۔ بلقیس پتر، اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کر۔ ماسی نذیرہ، جو کہ بلقیس کی ماں تھیں، اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا، ماں تو بس ایویں ہی پریشان ہو جاتی ہے، بس ذرا باغ تک ہی تو گئے تھے ہم۔ اماں دیکھ، شیدے چاچا کے باغ میں کتنے میٹھے امرود لگتے ہیں۔ بلقیس نے 3 بڑے بڑے امرود ماں کی جھولی میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نظر اتار کر وہ پاس پڑی پیڑھی پر بیٹھ چکی تھی۔ بلقیسے، اب تو اس باغ میں نہ جایا کر پتر، پتہ ہے تجھے اس باغ میں آسیب ہے، اور تو ہے ہی اتنی سونی، قسمیں جب تو باہر جاتی ہے نا تو میرا دل اندروں کتنا پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تھا، اماں یہ ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی آسیب واسیب نہیں ہوتا نہ۔ اماں تو بھلا بتا، تو ہم ساری سہیلیاں کچی سے اس باغ میں پھل توڑنے آتی ہیں، ہمیں تو ادھر کوئی آسیب نہیں دکھائی دیا۔ اس نے چوٹی کے بل ڈھیلے کرتے ہوئے ماں کو گویا سمجھانا چاہا تھا۔ اس نے ماں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور وہ جوانی ہی کیا جو کسی کی بات پر کان دھرے۔ یہ تو وہ منہ زور گھوڑا ہے جو دل کی زمین پر سرپٹ بھاگتا ہے، اس پر شہ سوار بھی دل ہی ہوتا ہے جو کہ اس کی باگیں تھامتا ہے۔ ایسی ہی حالت کچھ بلقیس کی بھی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ شام ڈھلے اس کے قدم آپ ہی آپ شیدے چاچا کے باغ کی جانب اٹھنے لگتے ہیں۔ جاتی وہ سکھیوں کے ساتھ ہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا باغ سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ لاکھ لڑکیاں کہتی چل، لیکن وہ باغ سے نہ اٹھتی۔ ان کے جانے کی 8 گھنٹے اکیلے باغ میں گزار کر اس میں ایسا سرور آ جاتا کہ ہر طرف سے مسرت اور سرشاری سی جھومتی تھی۔ اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ اس پر ایسا کیا جادو ہو گیا ہے، کیوں دل بار بار اسی باغ میں جانے کو مچلتا ہے کہ بس پل بھر کو باغ میں گھڑی 2 گھڑی بیٹھ کر آؤں۔ اماں کی باتوں نے اس کو ہلایا تھا، لیکن ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کہ اماں تو روز ہی ایسے ہی باتیں کرتی ہیں، وہ تو چاہتی ہیں کہ بس ہر وقت گھر میں بیٹھی رہوں۔ اس نے تمام باتوں کو ایک دم سے دل سے نکال دیا اور ہلکی پھلکی ہو گئی۔ بلقیس گاؤں کی ایسی لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی کہ جن کو خدا نے خاصی فرصت میں بنایا تھا۔ لڑکیاں بالیاں اس کے ساتھ فخر محسوس کیا کرتی تھیں۔ گاؤں کی پرسکون فضا میں لڑکیاں ادھر سے ادھر کھیت ناپا کرتی تھیں، جدھر دل چاہتا آتی جاتی، اور خاص طور پر اس شیدے چاچا کے کھیت سے پھل توڑنا تو گویا اس وقت سے جب وہ اسکول کی ابتدائی جماعت میں تھی روز کے معمول کا حصہ تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ اس باغ میں آسیب ہے، اور بچپن کا تجسس، بچہ ہر اس چیز کو سوچا کرتا ہے جو اس کی پہنچ سے دور ہو، اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بچپن کی گھڑیاں آگے چل کر مستقبل میں ایک خواب بن جاتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ وقت پیچھے چلا جائے، وہی گزرا زمانہ لوٹ آئے، لیکن گیا وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ بلقیس کو بھی بچپن سے آسیب کو دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اور اس کی سہیلیاں اسکول سے چھٹی کے بعد باغ کی جانب جانا نہ بھولتیں، باغ سے پھل توڑ کر کھاتیں اور آسیب کو دیکھنے کا انتظار کرتیں، لیکن مایوس ہوتی تھیں۔ اب تو وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ اب باغ میں آسیب کا انتظار نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک دوسرے کے دکھڑے روئے جاتے تھے۔ لیکن بلقیس کے دل سے آسیب دیکھنے کی خواہش ختم نہ ہوئی تھی، وہ اب بھی اسے دیکھنے کی منتظر تھی۔ بلقیس پتر، نی بلقیس سے بیٹی، وہ جو وڈے چودھری صاحب کا دعوت نامہ آیا تھا وہ کدھر ہے؟
मासी नजीरा ने पेटी का ढकना बंद करते हुए पूछा था, लेकिन जवाब में यह गुना खामोशी थी, बल्कि इस खामोशी से किसी गहरी सोच में खोई हुई छत को घूर रही थी। मासी ने उसे बुलाया, लेकिन उस पर तो कोई असर ही ना हुआ हो जैसे। वो हौला गई। बल्कीस सकते किसी हालत में थी। एकदम से मासी नजीरा के जहन ने बहुत दूर का फासला तय किया था और वो साथ वाले घर से जन्नत बी को बुलाने चल पड़ी। साईं शेर अली के हुजरे में अमूमन जमे गफीर हुआ करता था, लेकिन आज इत्तेफाक से मुरीद गिनती के ही थे। मासी नजीरा और जन्नत बी बल्कीस को लिए उनकी कोठरी में हाजिर थीं। काफी देर से साईं शेर अली बल्कीस पर दम दरूद करते हुए मुसलसल फूंक रहे थे और अब आंखें बंद किए मुसलसल तस्बीह के दानों को तेजी से गिरा रहे थे। मासी जन्नत और मासी नजीरा अजीब तजब्जुब के आलम में थीं, जबकि बल्कीस पर सख्ता तारी था। बस आंखें खोले छत को ही घूरे जा रही थी। दो अकीदतमंद भी उनको ही देख रहे थे। काफी देर के बाद आंखें खोलकर साईं जी ने बल्कीस की तरफ देखा और सर पर हाथ रखकर उस पर दम किया। फिर माथे पर हाथ रखकर उसने मजीद 3-4 फूंके मारी। एकदम बल्कीस ने आंखें झपकाना शुरू कर दी और हैरत से पहले अपने आप को और फिर अम्मा और मासी की तरफ देखा। कुछ हवास बहाल हुए तो फिर साईं शेर अली की जानिब देखकर सूरत हाल की बाबत दरियाफ्त किया तो साईं जी ने नजर के दम का बहाना बनाकर टाला और उन्हें जाने की इजाजत दे दी। नजीरा बीबी, तू जरा रुक। जब जन्नत बी और बिल्कीस कोठरी से बाहर चली गईं तो साईं जी ने मासी नजीरा की तरफ गौर से देखकर कहा, जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, और अगर अपनी लड़की की बेहतरी चाहती है तो फौरन उस बच्ची का ब्याह कर दे। वो ये कहकर खामोश हो गए थे। साईं जी, खैरियत है, बात तो पूरी करें। मासी के चेहरे का रंग अब फक हो रहा था। इस पर ऊपरी है बचपन से। अगर इसका 1 हफ्ते के अंदर ब्याह न किया तो फिर इसका ब्याह किसी से हो नहीं सकेगा। सारी उम्र ये उसकी ही रहेगी। इस पर अगर सुनना चाहती है तो सुन, क्या बर्दाश्त कर लेगी? शेर अली की आंखों में खून उतर आया था। मासी नजीरा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। साईं जी, रब सोने ने जब दी है ना तो मां का कलेजा भी समंदरों डूंगा बनाया है। आपने जो कहना है बिला शुबा कह डालो। मासी ने तड़प कर कहा था। इस बच्ची पर एक जिन आशिक है, एक अरसे से, और आज ही सख्ते में वो उससे निकाह कर चुका है। इसलिए तू देर ना कर और फौरन कोई अल्लाह वाला देखकर इसका ब्याह कर दे। साईं जी ने एकदम से आंखें बंद कर लीं। साईं जी, इतनी जल्दी कोई अल्लाह वाला किधर मिलेगा? मासी हनूज रो रही थी। नजीरा बीबी, तू रब दा नाम ले, इस बच्ची का नसीबा जल्दी लब जाएगा। साईं शेर अली ने मासी को तसल्ली दी और एक तावीज भी दिया। इस तावीज को इसके तकिए में सी देना, जल्द ही नसीब खुलेगा और ऊपरी से भी रब मान देगा, लेकिन देर ना करना। अब मासी के लिए जाने का इशारा था। ढोलक की आवाज मासी नजीरा के घर से आ रही थी। मासी की शब रोज की मेहनत से आखिरकार 3 दिन में ही रिश्ता मिल गया था। खुर्शीद अली शाह को मासी नजीरा ने तमाम हकीकत हाल से आगाह कर दिया था कि कहीं बाद में कोई बात निकले और बदनामी वाली बात हो। लेकिन वाकई बल्कीस का नसीब बहुत अच्छा था। तमाम हकीकत जानते हुए भी खुर्शीद अली शाह और उसके घर वाले उसे अल्लाह की ही रजा करार दे रहे थे। घराना बहुत मजहबी था, इसलिए इन चीजों आसेब वगैरह से ज्यादा अल्लाह की जात पर यकीन रखता था। तमाम रसूमात बअहसन खूबी अंजाम पा गईं। बल्कीस इस अचानक शादी पर कुछ हैरान परेशान ही थी। लेकिन चूंकि गांव की भोली भाली लड़की थी, इसीलिए ना ही ज्यादा जिरा कर सकी और ना ही किसी भी मसले पर कोई एतराज उठा सकी। नए घर में बल्कीस काफी खुश थी। खुर्शीद अली शाह बल्कीस से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि अक्सर बल्कीस बच्चों की तरह उछलती कूदती रहती और अक्सर बच्चों ही की तरह जिदें किया करती थी। और खुर्शीद अली शाह उसकी हर बात, हर ख्वाहिश पूरी करना अपना फर्ज समझते और तन्हाई में उसकी इन बातों पर मुस्कुराया करते थे। घर के बाकी अफराद भी, जिनमें उसके बड़े जेठ रशीद अली शाह, बेजी और मस्कीन काका शामिल थे, उससे बहुत खुश थे और इसी खुशी में ये भूल गए थे कि इस फूल की खुशबू एक जिन के कब्जे में है। और याद उस वक्त आया जब बहुत देर हो चुकी थी। बल्कीस और खुर्शीद अली शाह को जब यह इल्म हुआ कि अल्लाह पाक उनको जल्द ही एक खुशी देने वाला है, तो उन समय घर भर की खुशियों का कोई ठिकाना न था और बल्कीस खास तौर पर बहुत खुश थी।
दाई ज़हरा हाँपते हुए कमरे से बाहर निकली थी। ज़हरा बीबी खैरते है? रशीद अली शाह ने घबरा कर पूछा था। शाह जी खैर नहीं है, आप फौरन वोटी जुनू लेकर बड़े अस्पताल चले जाओ, नहीं तो पता नहीं की हो जाएगा। वो ये कहकर अंदर चली गई, जबकि रशीद अली और खुर्शीद अली गाड़ी का इंतजाम करने चले गए। बमुश्किल तमाम गाड़ी का बंदोबस्त किया गया और जब बल्कीस को लेने कमरे में गए तो दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बल्कीस की बगल में एक अजीब हैत का बच्चा लेटा हुआ था। बेजी खौफ से थरथरा रही थी। ज़हरा भी पास ही थी। शाह जी ऐहो ही मुश्किल सी, अगर जे मैं जरा भी देर कर देती ना तो वोटी जानो चली जाती। आप फौरन शाह जी इसे कब्रिस्तान में ले जाएं और दफना दें। अगर वोटी होश में आ गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जी। ये कहकर ज़हरा खामोश हो गई और कुछ पढ़कर बल्कीस पर फूंकने लगी। खुर्शीद अली, इसमें भी खुदा की कोई मसलहत पोशीदा होगी। फिक्र ना करो और अपने रब का शुक्र अदा करो कि बल्कीस की जान बच गई। औलाद तो खुदा दे ही देगा, तुम दोनों को रब सलामत रखे, दिल छोटा नहीं करते। रशीद अली शाह ने भाई को समझाया था। एकदम बल्कीस आंखें खोलने लगी। सबके चेहरे धुआंधार हो गए। बेजी बल्कीस के और करीब हो गईं। बेजी, बल्कीस की नकाहत ज़दा आवाज पर बेजी ने उसका माथा चूमा था। बेजी सब ठीक है ना? बल्कीस होले होले कह रही थी। बेजी ने घबराकर बल्कीस की तरफ देखा। उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। ज़हरा भी चुप थी। बल्कीस ने करवट ली। वो हैरत से कुछ न समझते हुए रशीद अली और खुर्शीद अली की तरफ देख रही थी। एकदम उसका दायां हाथ अपनी गिरद में कुछ टटोलने लगा। ममता अपने वजूद के हिस्से को हाथ से महसूस करना चाह रही थी। दुलार उस नन्ही सी जान को छूकर ठंडी सांस खारिज करना चाह रही थी। अपना आप देखना चाह रही थी। हाथ ने घबराकर बेचैनी से बच्चे को टटोलना शुरू कर दिया था। नजरें रशीद अली और खुर्शीद अली की तरफ से हटाकर गौर से बच्चे की तरफ देखा। बल्कीस की चीख निकल गई और उसकी पलकें झपकना भूल गईं। एक हूक सी उठी थी। लगता था कि किसी ने दिल पर आरा चला दिया हो। दिल को किसी ने जबरदस्ती उल्टी छुरी से टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। उसने अपनी कोख में एक जिन की परवरिश की थी। ये एहसास ही उसके लिए बाइसे नेदामत था। उसकी खता क्या थी? क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? वो यही हर पल सोचती रहती थी। बचपन के तमाम वाकयात जहन की स्क्रीन पर अब चलने लगे थे। उसे आसेब देखने का कितना शौक था। किस कदर वो आसेब देखने के शौक में शीदे चाचा के बाग में बैठ जाती थी। कैसी बेकली रहा करती थी उन दिनों से। इस वाक़े के बाद बल्कीस न रही थी। तमाम हंसी मजाक वो भूल गई थी। मुस्कुराहट तक उसके लबों से दूर रहती थी। बस चुप चुप सी रहा करती। खुर्शीद अली शाह हर पल उसकी दिलजुई करते, लेकिन उस पर तो उदासी का मौसम आ गया था। उसकी कोख उजड़ी थी। इससे बड़ा दुख उसके पास कोई न था। बेजी भी एक दिन उसे छोड़कर मुल्के अदम सधार गई। अब वो अकेली रह गई थी। खुदा ने उसे एक मर्तबा फिर से खुशी से नवाजना चाहा था। वो खुदा से हर पल यही दुआ करती थी कि उसे खुदा फिर पहले की तरह इम्तिहान में न डाले, फिर से वैसा दुख न दे। वो अक्सर खुर्शीद अली शाह से कहती थी, शाह जी अगर फिर मेरी कोख उजड़ी ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब जबकि खुदा की कुदरत से वही घड़ी दोबारा आन पहुंची थी तो खुर्शीद अली शाह को यही डर था कि कहीं खुदा उन्हें दोबारा से इम्तिहान में न डाल दे, क्योंकि उन्हें भी बल्कीस से बहुत प्यार था। वो खुदा से औलाद की नेमत की दुआ करते रहते थे, क्योंकि यही नेमत बल्कीस की खुशियों की जामिन थी। शाह जी मुबारका, बहुत बहुत मुबारका, रब सोने ने पुत्र दिता है चनवर का। ज़ारा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कमरे से बाहर झूमती हुई आई थी। रशीद अली और खुर्शीद अली दोनों ने उसे खैरात बांटने के लिए पैसे दिए और खुद नफल पढ़ने जाए नमाज पर चले आए। रात का वक्त था। चांदनी चुटकी हुई थी। चांद शबाब पर था। फजा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। बल्कीस ने खुर्शीद अली शाह के कहने पर आंखें खोली थी। वो अपने पहलू में पड़े चांद को तक रही थी। एक नूर सा उसके पहलू में खुदा ने डाल दिया था, जिसकी आंखें बातें कर रही थीं। उसने एक अजीब सी खुशबू महसूस की। हल्की हल्की हवा चल रही थी। पर्दा सिरका उसे आसमान पर पूरा चांद नजर आया और एक चांद अपने पहलू में पूरा चांद। वो यकटिक उस बच्चे को घूरने लगी।
بولتی آنکھوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کی تو لگا وہ مسکرا کر کہہ رہا ہو، میں آ گیا ایک نئے روپ میں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔